Okay, so good afternoon, everyone. I hope I am audible to all. Okay, so all the viewers, I welcome you on behalf of the Manas and family, and I am the moderator for this half an hour session. And in this discussion, we are going to talk about working from home and wellness. So this is very relatable to all our viewers because we will be talking about working from home. How can we, make a balance between our wellness? And to join us in this discussion, we have Miss Kamble with us, and it gives me an immense pleasure to introduce Miss Jyoti Kamble. Ma'am is a clinical psychologist. She is the founder of Rang Vimal Manasik Arogya Clinic. She is currently working as an assistant professor in Composite Regional Center and also as a guest faculty. Hello. Hello. Hello, ma'am. Maybe there's a network issue by her side. You may continue as Hello, viewers am I are audible? there. So you may continue with your topic and let us know more about the topic. Yeah, she is back. Thank, She's back. yeah. Yeah, Vishaka is Thank you, back. ma'am. Yeah. Okay, sorry for the technical glitch, and so we will start again. So we are going to talk about working from home and wellness. Yes, and to have a very good and fruitful discussion on this topic, we have Ms. Jyoti Kamble ma'am with us. She is a clinical psychologist and she is also the founder of Rang Vimal Mansik Arogya Clinic, presently working as an assistant professor in Composite Regional Center, and also she is a guest faculty in Kasturba Nursing College, Bhopal. Okay, so ma'am has a huge list of achievements, but to add on to few, ma'am has got the Best Paper Award in three international uh, journals and one national journal. Also, ma'am has one book chapter abstract in learning disabilities. Okay, so ma'am, we are very grateful to have you. Thank you for giving us your time. थैंक यू विशाखा. नमस्कार सभी लोगों को. मैं ज्योति कामले, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, भोपाल, इंडिया से. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मेरा टॉपिक है वर्किंग फ्रॉम होम एंड वेलनेस है. अभी कोविड-19 के दौरान जो अभी सिनेरियो चला है, उस सिचुएशन की वजह से हम सबको घर में रहना पड़ रहा है और घर ही से सभी लोग अपना काम कर रहे हैं. ठीक है. तो वेलनेस क्यों जरूरी है, वेलनेस कहाँ तक की जरूरी है और वेलनेस का इफेक्ट हमारे काम पे, हमारे सिचुएशन पे और हमारे पूरे डेली रूटीन पे कैसा रहता है, हम उस पे आज चर्चा करेंगे. राइट. ओवर टू यू विशाखा. Okay, so thank you, ma'am. We are close to 9 months, and it seems the work from home experiment जो चालू हुआ था, it is not going to end, you know. And before 9 months, we used to say कि हमारी एक work life होती थी, personal life होती थी. But now we are at a point जहाँ पे जो boundaries थी, वो खत्म हो चुकी है. Now we can't see any boundaries, and at the same time, though Corona outbreak has cut short our traveling time, but psychologists are reminding us again and again about the unfavorable impact on the wellness of a person. So we have a very apt resource for it, who is going to tell us about wellness क्या होती है, physical and mental wellness कैसे related है. So over to you, ma'am. Okay. Wellness is an active process of becoming aware of making choices toward a healthy,
एंड फुलफिल इन लाइफ। ठीक है, वेलनेस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम अवेयर होते हैं कि हमारी कौन सी नीड है जो हमें चाहिए फुलफिल करनी है और इन्हें हेल्दी वे में जानी है। ठीक है, तो वेलनेस is more being than free from the illness. Okay, it is a process of becoming a change and growth. ठीक है, जहां पर हमें चेंज लाना है और ग्रोथ लाना है तो ही हमारा वेलनेस अच्छा हो। और जहां तक की बात है, हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और उससे रिलेटेड, yes, mental health and physical health are fundamentally linked together. Okay, एसोसिएशन है कि जैसे अगर पुअर हेल्थ हमारी है तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हमारा फिजिकल हेल्थ में अगर कोई पुअर है तो उसका इफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। ठीक है, मेंटल हेल्थ हमारी इन्वॉल्व करता है ओपन माइंड करने के लिए। ठीक है, जिसमें हम एनकाउंटर्ड करते हैं हमारी आइडियाज, और जो हमारी आइडियाज जितनी कंटिन्यू होती है तो हमारा नॉलेज क्या होता है, एक्सपैंड होता जाता है। ठीक है, नॉलेज जितना एक्सपैंड होगा तो हम क्या करेंगे कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी हो या हमारी एकेडमिक हो, स्कॉलास्टिक हो, कम्युनिटी एक्टिव हो, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर हमारे कॉग्निटिव एबिलिटी में, हमारे कॉग्निटिव फंक्शनिंग में अगर प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और जहां हम फिजिकल हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ और वेलबींग को हमें कैसे मेंटेन करना है कि हेल्दी बॉडी रहे हमारी, और उसकी हम क्या करें, अपनी बॉडी की प्रॉपरली केयर करें। ठीक है, जहां जहां हमें जरूरत है, अगर हमें कहीं पर कोई ऐसे साइन दिख रहे हैं कि जहां पर हमें हमारे फिजिकल हेल्थ की नीड है तो हम उस साइंस को समझें और उसकी इमीडिएट हम एक्शन लें। अगर हम ज्यादा फिजिकली भी अगर हम उस चीज को सफर करेंगे तो वो हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बोलना ये है कि दोनों ही रिलेटेड है, फंडामेंटली लिंक्ड है, फिजिकली और मेंटल हेल्थ जो है हमारा वेलबींग के लिए। थैंक यू विशाखा। ओके, सो मैम, अभी हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, एंड इन दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम वी हैव गॉट द स्टैटिक फेज कि ये जो पैंडेमिक आउटब्रेक हुआ है उसमें सिर्फ 1% एडवांटेज है कि 99% जो है it has a very bad impact on the mental health of a person. So nowadays we have come up with the group suicides are coming up, anxiety, stress, and also people are becoming aware about it. So ma'am, in a nutshell, can you please share with us what are the psychological effects on a person happens during this lockdown? ओके, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट आए हैं जो हम हर एज ग्रुप में देख रहे हैं, चाहे वो एडल्ट हो, चाइल्ड हो, ओल्ड एज हो, हर एक एज ग्रुप में कोविड-19 पैंडेमिक ने इफेक्ट डाला है। ठीक है, साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी, राइट। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग एज ग्रुप में ही, तो क्वालिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ लाइफ वो भी डिटरमाइन करना है, वर्नेबल हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है जो बच्चों में होती है, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या एजुकेशनल स्टेटस को हम देखें उस पे हैम्पर हुआ है, इकोनॉमिकली जो है उस पे इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, कि और लोग जो है क्वारंटाइन हो रहे हैं, और क्यों क्वारंटाइन हो रहे हैं, क्योंकि हमें सेफ रहना है, राइट, कि कहीं वो इन्फेक्शन हमें ना लग जाए या हमारे फैमिली मेंबर को ना लग जाए। ठीक है, तो वो एक फियर भी है जो माइंड में उनके एंग्शियसनेस और डिप्रेशन ये क्रिएट कर रहा है। जहां हम बात करते हैं कि यंग पीपल पे भी उसका इम्पैक्ट हो रहा है। यंग पीपल पे इम्पैक्ट कैसे हो रहा है कि जो बच्चे अभी अभी जन्मे हैं और जो जन्म होने वाले हैं उनके भी इफेक्ट पड़ रहा है, जो मदर हैं जो बर्थ देने वाली हैं। ठीक है, तो उनके भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, कि मेरा बच्चा जो होगा वो स्वस्थ होगा कि नहीं, कहीं उसे इन्फेक्टेड ना हो जाए। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट मदर से वो बच्चे के फीटस में वो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर फिर से हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल का इफेक्ट उसके बायोलॉजिकल इम्पैक्ट पे जा रहा है, राइट। देन दूसरा अगर हम देखें कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जा रहा है स्कूल एंड कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट पे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या है, घर से पढ़ना पड़ रहा है, बच्चे घर पे हैं। ठीक है, बहुत सारे असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, तो बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस है, इंटरनेट प्रॉपरली नहीं चल रहा है, हमें असाइनमेंट देना है। ठीक है, और नेट खत्म हो जा रहा है, क्या वो उस एरिया में है जहां पर नेट चल रहा है, नहीं पा रहा है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे एंग्जाइटी और फियर है कि अगर हमने असाइनमेंट टाइम पे सबमिट किया है कि नहीं, और फिजिकली रिस्ट्रेन हो गए हैं एक्टिविटी से, अपॉर्चुनिटीज जितनी सोशलाइज्ड होनी थी वो नहीं हुई है, तो एजुकेशन पे भी इफेक्ट पड़ा है इसकी वजह से, राइट।
और जहां हम बात करते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम है बच्चों की, जैसे कि या इमोशनल डिफिकल्टी या लर्निंग डिसेबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जहां हम अगर ऑटिज्म वाले बच्चे या एडीएचडी इन सब पे बात करें, जितने स्पेशल स्कूल्स हैं या डे केयर स्कूल हैं वो भी बंद हो गए हैं, ठीक है, नॉर्मल स्कूल तो बंद ही हो गए हैं, डे केयर स्कूल भी बंद हो गए हैं। तो जिन बच्चों की डेली एक्टिविटी रूटीन के लिए स्पेशल एजुकेटर और जो पूरी ऑक्यूपेशनल और स्पेशल थेरेपी जो उन लोगों की चलती थी वो भी क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई। तो बच्चों को वो सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो माता पिता भी परेशान हैं। और जिस लाइन पे बच्चे को लेके आते हैं कि हाँ चलो अब ये अपनी एक्टिविटीज कर सकता है, इसका हमने शेड्यूलिंग कर दिया है, तो वो बच्चा जो है ऑटिस्टिक चाइल्ड, एडीएचडी चाइल्ड है, वो वापस से क्या होता है, उसकी एक्टिविटी डिक्लाइन होने लग जाती है, ठीक है। और जैसे दूसरा इम्पैक्ट है कि क्वारंटाइन और सेपरेशन में है, कि अगर फैमिली में कोई कोविड से रिलेटेड है या अगर वो क्वारंटाइन हुआ है तो फैमिली मेंबर्स में एंग्जाइटी है कि मेरे फैमिली मेंबर ठीक होके आएंगे या नहीं आएंगे। और बच्चे जो दूर हैं, उनके पेरेंट्स कहीं और हैं और वो कहीं स्टे और कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो हैं वो इंक्रीज हो। थैंक यू विशाखा। ओके, थैंक यू मैम। मैम जैसा कि जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, है ना, और फिर वर्क फ्रॉम होम एक ऑप्शन बन गया था या फिर कहें कि एक नेसेसिटी बन गया है अभी हमारे लिए करने के लिए। सो व्हाट द यूथ हैव एंड द पीपल हैव बैक इन द माइंड इज लाइक, अगर आप घर से काम कर रहे हो तो आपका प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि काफी चीजें आपकी कट शॉर्ट हो गई है, बी इट योर ट्रैवलिंग टाइम, यू नो, सोशल मीटिंग्स जो थी वो कम हो गई है, यू आर जस्ट एट योर कंफर्ट जोन। So ma'am, can you please tell us कि higher productivity के लिए भी wellness कितना जरूरी है? ओके विशाखा, गुड क्वेश्चन विशाखा। इसके लिए हमें अपना जो स्लीप रूटीन है कांस्टेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी देनी है अपने काम की और हमारा वर्क और लाइफ बैलेंस दोनों रखना है, और अभी के टाइम में तो बहुत हार्ड हो गया है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, मतलब जिसको हम कहते हैं ना नामुमकिन नहीं है, हम तो करके दिखाएंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर अ सोशल ह्यूमन बीइंग। तो हमें जो टास्क दिया जाएगा, एक दो दिन प्रॉब्लम होगी लेकिन उसके बाद हम तो कर लेंगे, ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो हमारा टाइम शेड्यूल देखना है, हमारी स्लीप हाइजीन देखनी है, ठीक है, उसको हमें अच्छे से मेंटेन करके रखना है। और सबसे पहले तो अगर हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वाईफाई कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए कि जो हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे मेल्स देखने के लिए या हमें ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग अटेंड करने के लिए हमारा वाईफाई या हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इसेंशियल वही चीज जरूरी है कि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है कि नहीं, ठीक है। और प्रॉपर हमें शेड्यूल फॉलो करना है, जैसे पहले शेड्यूल फॉलो करते थे 9 to 5 या 9 to 6 का अगर आपका वर्क आर है तो आपको प्रॉपर आपका वर्क शेड्यूल फॉलो करना है, ठीक है, और वर्क शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि टू डू लिस्ट बनाएं कि हमें ये काम सुबह करना है, ये काम दोपहर को करना है, और ये वाला टाइम हमारा फैमिली के लिए, ठीक है, कि कुछ एक्टिविटीज हमने ऑफिस के लिए रख ली, कुछ एक्टिविटीज जो हमारी पर्सनल है वो हमने अलग कर ली, ठीक है, और उसको प्रायोरिटाइज में रखते हुए हमें चीजों को करना है कि कौन सी चीज पहले जरूरत है, कौन सी दूसरे में जरूरत है, कौन सी तीसरे में। तो प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम प्रायोरिटाइज करेंगे तो क्या होगा, हम अलर्ट रहेंगे और हम फोकस रहेंगे कि हाँ हमारा ये वर्क है, हमें अटेंटिवली और एक्टिवली उसको करना है और फोकस्ड रहना है, राइट। और उसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्क प्लेस हमें एक डिसाइड करना है जहां पर हम काम कर सकें, ठीक है। घर का एक कोना ऐसा बना लीजिए जो पूरा सेटअप हमारा वर्क के हिसाब से हो, कि जहां हम काम करते हैं, चाहे आप एज ए टीचर हो या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो हमारा एक घर का एक कोना हम वैसा बना लें कि जहां पर हम बहुत ही अच्छे से बेहतर काम कर सके, और वहां पर हम ये भी चेक करें कि वहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर आ रही है कि नहीं, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ हमें अपना क्लॉक आउट भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये नहीं कि 9 to 5 का वर्क आवर है तो हम उसको एक्सटेंड करके भी बहुत लंबा चौड़ा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक टाइम शेड्यूल जो हमने बात की है, क्लॉक आउट हमें करना है कि हाँ अब ये मेरा टाइम खत्म हो गया है, तो अब इसके बाद का लाइफ क्या है, मेरी फैमिली का है, तो उनको भी देना है, ठीक है। तो क्लॉक आउट हमें रखना है ताकि हम चीजों के क्या कर सके, ओवरलोडिंग जो है उससे हम बच सके, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें खुद की सेल्फ केयर पे भी ध्यान देना है, ठीक है। मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर,
कि हमें पहले खुद को भी देखना है कि हमारी केयर हमें करनी है, चाहे हमारी फिजिकल नीड है या हमारी साइकोलॉजिकल नीड जो है, कहाँ कहाँ क्या चीज चाहिए वो हमें देखनी है। और अगर साथ साथ ऐसी कोई चीज है कि हमें जो स्किल डेवलप करनी है, जो हम लॉकडाउन के दौरान या इस वर्चुअल मीडिया के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं, तो वो भी हम करें। ठीक है, कि अगर हमें ऑनलाइन अगर क्लासेस अटेंड करके कुछ करना है कि ये स्किल हम डेवलप कर सकते हैं, तो ये वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है कि हम वर्चुअली घर पे रह के हम अपने अपने स्किल्स को हम पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि अगर जो भी मीटिंग्स हो रही हैं हम अवेलेबल रहें। ठीक है, अवेलेबल रहें उस मीटिंग पे, हमारे मेल्स जो है हम उनको अपडेट करते रहें, उनको हम फ्रिक्वेंटली हम मेल पे जवाब देते रहें, या जो मैसेजेस आ रहे हैं हम उन पे रिप्लाई भी हम देते रहें। राइट, और जैसे मैंने कहा कि हम अपने घर के एक कोने को एक रूम दे दें कि हाँ ये हमारा ऑफिस है, हम उसको सेट करें। जी, थैंक यू विशाखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जी बिल्कुल मैम। तो मैम अभी आपने बहुत अच्छे से टिप्स शेयर किए, तो मैंने भी पर्सनली नोट डाउन कर लिया है कि मुझे भी वर्क फ्रॉम होम करने में हेल्प करेगा। आई होप हमारे जो व्यूअर्स डाउन करके कुछ चीज दे आर गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज़ पैंडेमिक इज नॉट गोइंग टू एंड दिस अर्ली आई गेस। मैम ये एक क्वेश्चन जो है वो when I was talking with my friends, so they came up with some of the practical challenges that they face during work from home. So उनके कुछ opinions थे, but as a psychologist मैम, we would love to hear from you कि practical challenges क्या हम face करते हैं during work from home. ओके, हाँ, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है फेस कर रहे हैं वर्चुअल, जहां हम वर्क करें वर्क फ्रॉम होम में। जैसे अभी मैंने प्रीवियसली बात किया था अभी कि हमें ओवरलोड नहीं करना है। ठीक है, वर्किंग टू मच नहीं करना, सबसे पहला चैलेंज यही है कि अब हम घर में हैं तो हम जितना चाहे हम उतना काम कर सकते हैं, है ना? नहीं, लेकिन हमें क्या करना, टू मच वर्क जो होता है ये बहुत ही बड़ा चैलेंज आज के टाइम में आ रहा है। ठीक है, जो हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं वो इसके लिए आ रहे हैं कि मैम हमें लग रहा है कि हम एक बार बिंज में ही सारे काम कर लें, है ना, सुबह से शाम तक हम क्या करें, काम करें, और दूसरा दिन हम क्या करें, डे में सो जाएं। नहीं, तो क्या करना है, वर्किंग टू मच एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। वर्किंग टू मच नहीं लेना है। ठीक है, कि अरे नहीं अभी हम खाना खा लेंगे, पहले हम इतना निपटा लें, हम तो घर पे हैं, हम खाना खा लेंगे। लेकिन जहां हम ऑफिस में रहते थे तो वहां हमारा टाइम शेड्यूल होता था कि ये इतना टाइम हो गया, अब हमारा लंच ब्रेक हो गया। ठीक है, तो वो टाइम शेड्यूल फॉलो करना बहुत जरूरी है, यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, कि वर्किंग टू मच, राइट। दूसरा, जहां मैंने प्रायोरिटाइज की बात की है, तो प्रायोरिटाइज अगर हम चीज करेंगे तो बहुत हेल्दी होगा और वो हमारे मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होगा। जहां चीजें रूटीन में नहीं होंगी, ठीक है, तो क्या होगा, पर्सन को रश होना पड़ेगा, चीजें मॉर्निंग से रश होती जाएंगी तो एंड तक वो रश करता रहेगा। ठीक है, तो प्रायोरिटाइजेशन प्रायर उसका अपॉइंटमेंट करना बहुत जरूरी है, या प्रायर जो हम शेड्यूलिंग कहते हैं वो करना बहुत जरूरी है, ताकि चीजें सिस्टमैटिक हो। तो हम इस चीज से हम बच सकते हैं, इस चैलेंज से बच सकते हैं। दूसरा, अगर वर्कलोड हो रहा है, बहुत वर्क कर रहे हैं और हैप्पीजार्ड में भगना पड़ रहा है, अगर टाइम शेड्यूल नहीं है, तो क्या होगा, बर्न आउट होगा। ठीक है, तो जहां बर्न आउट होगा यानी कि एक साथ बहुत सारी चीजें हैं, ये भी करना है वो भी करना है, एक साथ स्ट्रेच में कर रहे हैं, तो बर्न आउट हो जाएगा, राइट। एंड वर्किंग टू मच, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। ज्यादा वर्क किया, बर्नआउट हुआ, प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो क्या आ रहा है, लोनलीनेस, एक ही जगह पे रह जा रहे हैं, लोनलीनेस हो रहा है, अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें टास्क कंप्लीट करना है, हमें जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना है, हरी में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो फैमिली की चीजें क्या है, उनके इमोशनल हेल्थ, उनके फिजिकल हेल्थ, सारी चीजों को देखना है। वहां पर कम्युनिकेशन क्या हो जा रहा है, पुअर हो जा रहा है। ठीक है, फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन यहाँ पर बीच में डिस्ट्रप्शंस हो जा रहा है फैमिली के बीच में, तो इश्यूज यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो लूप्स है उनको भरना है, तो लूप्स कैसे भरे जाएंगे, जो मैंने अभी प्रीवियसली क्वेश्चन में आपको बताया था कि किस तरह के स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं इस चैलेंजेस के लिए, राइट। कि हमें प्रायोरिटाइज करना है और जो ये फैमिली को टाइम देना है, ताकि जो इंटरप्शंस ना हो, कि हमारी भी लाइफ है, हमारी फैमिली है। बहुत सारे लोगों के घर देखा होगा कि उनको पेट पालने, पेट बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी बहुत अच्छा है, हमारे स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं जो हमारे पेट होते हैं।
ठीक है, तो वो स्ट्रेस रिलीजर होते हैं हमारे, ठीक है, तो उनके साथ भी हम टाइम स्पेंड करें, देखा है कि वो बोलते नहीं है बेजुबान जानवर, लेकिन उनके साथ भी अगर हम बात करते हैं तो हमें भी रिलीज मिलता है, उनको भी रिलीज मिलता है, दे ऑल्सो नीड टाइम, तो वी ऑल्सो नीड टाइम, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिससे अभी के टाइम में बहुत सारे लोग जो है फेस कर रहे हैं। थैंक यू विशाखा। थैंक यू मैम। एक बहुत अच्छा पॉइंट मैंने अभी नोटिस किया, मैम ने कुछ स्ट्रेस बस्टर्स के बारे में हमें बताया जो हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं या हम प्रैक्टिस में लेकर आ सकते हैं। So continuing with the same thought, ma'am, there are some small tips that you could give us since it's a mental health awareness day. So how one can take care of its mental health, with these small tips for all our viewers. ओके, अभी कोविड के दौरान सभी लोग जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से जो है फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले चीज, हमें सबको ये अपने आप को दिलासा दिलाना है कि ये जो है टेम्पररी है, ये चला जाएगा, ये कुछ वक्त के लिए है ना, ये वक्त चला जाएगा, वक्त किसी के लिए ठहरा नहीं है, ठीक है। ये जो पल है, जो ये एक हमारे लाइफ का जो बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेस आई, ये हमारी परीक्षा है हम सबकी, तो ये परीक्षा हम लोग सभी देते आए हैं और इस परीक्षा से हम निकल जाएंगे, जरूर निकलेंगे, ठीक है। तो ये फॉर अ टेम्पररी पीरियड है, टेम्पररी पीरियड ऑफ आइसोलेशन है, ठीक है। हमें इससे निकल के हमें बाहर आना ही है और हम सब मिलके इसको कर सकते हैं। जहां अभी ये जो पूरा मैराथन चला है, इसमें भी पूरी एज अ फैमिली सबने वर्क किया है, दिन रात एक किया है, तो ये भी हम कोविड से भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये टेम्पररी है। अपना रूटीन जो है मेंटेन करके रखे सभी लोग, हेल्दी डाइट लें, ठीक है, क्योंकि एक बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए, एंड स्लीप बहुत जरूरी है, ठीक है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। उसी के साथ साथ रेगुलर ब्रेक भी लेना है, जब हम काम कर रहे हैं तो बीच बीच में हमें ब्रेक लेना है, और ब्रेक भी हमारे किसके लिए जरूरी है, हमारे ब्रेन के लिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारे इतना ज्यादा अगर हम फोकस कर रहे हैं तो हमारा अटेंशन कंसंट्रेशन भी फोकस होना चाहिए वर्क के लिए, तो उसके लिए हमें भी जो हम ब्रेक्स लेते हैं वो हमें क्या करता है, मोटिवेशन देता है, राइट। सॉरी। और हमें अपने जो सोशल मीडिया पे भी हमें अपने फ्रेंड से या अपने फैमिली मेंबर से अपडेट रहते रहना है, ठीक है, क्योंकि अगर जिसके फैमिली मेंबर अगर दूर हैं और वो कहीं और हैं, तो स्टे कनेक्टेड विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो कॉल पे बात करें, चैट्स पे रिप्लाई दें, मेल्स पे रिप्लाई दें, अपडेटेड रहें, राइट। रिलैक्सेशन टेक्निक अपनाएं, ठीक है, रिलैक्स रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल लें, और जो हम पॉजिटिव थॉट हम कहते हैं कि हमें खुद को एक पॉजिटिव थॉट देना चाहिए, पॉजिटिव हमें खुद को एक स्टेटमेंट्स देना चाहिए, तो वो हम भी कर सकते हैं कि डेली सुबह उठे हम खुद को 5 पॉजिटिव कमांड दें, और वीकली हम देखें कि जो हम 5 पॉजिटिव कमांड दे रहे हैं वो हमारे एक्टिविटी से रिलेटेड हो, ठीक है, और वो 5 पॉजिटिव कमांड हम देखें कि वो हमारी पूरी डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 5 पॉजिटिव कमांड जब हम देंगे इनिशियली सुबह उठ के, तो वो हमें स्ट्रेंथन करेगा, हमें मजबूत करेगा, ठीक है, कि हमें इस पैंडेमिक से निकलना है, ये टेम्पररी है, कुछ दिनों के लिए है, हमें हेल्दी डाइट लेना है, ठीक है, हमें मेंटली फिट रहना है, फिजिकली फिट रहना है, एक्सरसाइज करना है, तो वो पॉजिटिव कमांड जो है हमें खुद को देने हैं, ठीक है। माइंडफुलनेस चीजें हम यूज कर सकते हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक जिसे हम कहते हैं, माइंडफुलनेस ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस ईटिंग, माइंडफुलनेस बाथिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कि जब हम शॉवर ले रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि ये जो हम शॉवर ले रहे हैं ये हमारे बॉडी से डर्ट निकाल रहा है, ठीक है। अगर हम माइंडफुलनेस ब्रीथिंग कर रहे हैं तो जो जो ब्रीथ हमारे अंदर जा रही है, पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारी एनर्जी क्या कर रही है, बॉडी में लेके जा रही है, और नेगेटिव एनर्जी हमारे बॉडी से बाहर आ रही है, ठीक है। ऐसे ही इंजॉय करते रहें, अपनी जो एक्टिविटीज हैं, हॉबीज हैं, उस पे भी अपना वक्त दें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है जब हम घर पे हैं, तो जिसकी हॉबी है कि कुकिंग करना या ड्राइंग करना, तो वो बहुत अच्छे से अपनी इस हॉबी को बढ़ा सकता है। जैसे आई लाइक कुकिंग, तो मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के अपने हॉबी के लिए भी टाइम दें, ठीक है, जितना हम अपनी हॉबी को टाइम देंगे तो होगा क्या, हमारे मेंटल पीस और हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे वेलबींग के लिए अच्छा होगा। थैंक यू विशाखा। ओके, सो थैंक यू मैम। सम ऑफ द थिंग्स जो मैम ने हमारे साथ अभी शेयर की है, 5 हेल्दी कमांड्स, यू नो,
So this is very nice. So thank you, ma'am, for giving us, these 5 healthy commands, and thank you for making understand, work from home के भी कुछ हम positively अगर लें उस चीज को, तो हम अपनी productivity भी बढ़ा सकते हैं, और हम पूरे स्माइल के साथ और पूरे एनर्जी के साथ हम ये सारे कामों को कर सकते हैं. So I guess work from home experiment अभी खत्म होने वाला नहीं है, because we are still amid the coronavirus outbreak. But talking to you, ma'am, and through your little advices, it is really helpful, and also for our friends, so that because we are going to share what you have shared with us, so that we all can work with a smile, with a joy on our faces in this pandemic situation. Thank you so much, ma'am, for giving us your time. Thank you, Vishaka, and thank you, Nidan. Thank you, Kala Mohan, for giving me this opportunity. कि मुझे ये मंच दिया और मैंने अपना एक टॉपिक साझा किया, और आई थिंक मैंने जस्टिस किया होगा अपने टॉपिक के साथ, और मैंने मदद किया होगा लोगों की कि कुछ टिप्स मिले होंगे इस सेशन से लोगों को कि वो अपने मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग को अपने घर से कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए उनको स्ट्रेंथ मिला. थैंक यू विशाखा. ओके, सो इन केस अगर चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, किसी व्यूअर के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वी कैन टेक अप द क्वेश्चन बिकॉज़ वी हैव 5 minutes लेफ्ट विद अस. ओके विशाखा. ओके, सो आई थिंक मैम के सेशन ने सारे डाउट्स कंप्लीट कर दिए हैं, स्मॉल टिप्स हमें दे दिए हैं. सो देयर इज नो question. So thank you once again, ma'am, and thank you, Manathan, for giving us this great opportunity to talk about work from home, which is very relatable, and also to make us aware about what physical wellness is, mental wellness is, and how important it is to increase our productivity. So thank you, everyone, and next we have with us Anuja ma'am and Ayushi ma'am. They are going to take up the next session.